notification. Mohammed, dated. are they 22 or 23 seats? They're saying you have issued two different notifications. My lord, I beg your pardon. I'm just getting a fix on it. Our position is it's 23. I'm just trying to understand that, and I'll clarify it, sir. Okay, fine. They are 23. all- he says And the provincial ones are how many? Is there dispute on that or there's no dispute? No, there's no. अच्छा, I okay, think that's ठीक the same number. ठीक है, fine, you'll let Sir, us know. sir, what I'm preparing quickly is बता दीजिएगा मैं। एक सफे पे ये breakdown आपको ठीक है, हमने note कर लिया, but clarify this issue. The difference comes in when they've issued the notification for suspension. It contains 22. They got it. The Please original clarify it. notifications contains 23. Nothing much will turn on it. Yes. ठीक. If, as to the breakdown of seats in the National Assembly, page 194 अगर आप देख लीजिएगा kindly. ये तमाम जनरल सीट्स जी जो कि जिस पार्टी ने जीती है जी 194 मैं अगर आपको बता दूं मेन पार्टीज अगर आपके सामने है 194. Does these include these seats or no? include करती हैं. यस इंक्लूड करती हैं. ग्रैंड टोटल भी दिया हुआ है एंड में. मैं उस पे भी आता हूँ. आप सिर्फ वो बता दें जो ओरिजिनली जनरल सीट्स जी 194 अगर आप देख लीजिए जो सिक्योर की जी मैं 190 सर ये कौमी असेंबली का बता रहे हैं जी कौमी असेंबली 194 83 PMLN 52 PPP Sunni Ittihad Council. This is important because we are recognized as a parliamentary party. Muttahida Qawmi Movement 17, JUI Pakistan 6, Pakistan Muslim League 4, इस्तेकाम ये कौन सी मुस्लिम लीग है? आप लीग है. सर ये काफ लीग है अच्छा, तो क्यों आप लिखे हैं? जी ओके. सर वो ये जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने अच्छा, ओके. जी हाँ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी 3 मजलिस वहदत मुस्लिमीन 1 and then there is the Zia group, then everyone else has 1. And then, as my learned Attorney General pointed out, independents are 7. Then there is this breakdown. अगर आप देख सकते हैं National Assembly में ये reserve seats का भी given है, and then there is a grand total at the end. This contains all reserve seats, disputed and undisputed, of National Assembly. इसलिए आप अगर नीचे टोटल देखेंगे तो नॉन मुस्लिम्स 9 दिखाई हुई हैं, वो 58 दिखाया हुआ है, which is in terms of Article 51, 60 and वो. So this is the grand total. If I may come to the Provincial Assembly. ये जो आपने 194 पेज पे फैसल साहब 194 पेज पे जो आपने चार्ट लगाया जी आपने खुद बनाया या किसी No, this is notified by the Election Commission. So they have notified the Sunni Ittihad Council as a political party. Yes, as a parliamentary Against party. that, they show 82 seats, Yes. not independents. No. So the Election Commission itself does not acknowledge them to be independents. Yes, my lord. They acknowledge them as a part of Sunni Ittihad Council who had legitimately joined the Sunni Ittihad Council within 3 days under Article 51, which I will show to you. ये तो मेरे ख्याल में अगर हम इसको देखेंगे इस पॉइंट पे आएंगे तो इनका फेट पहले से डिसाइड उस वक्त होता है जब नॉमिनेशन पेपर सबमिट करते हैं सेक्शन 66 इलेक्शन एक्ट के तहत वहां से मालूम होता है कि कौन से कैंडिडेट किस पार्टी से Yes. कौन से कैंडिडेट इंडिपेंडेंट है. तो हमने ये तो उस बात में देखिए वेदर द कैंडिडेट्स हु वर इलेक्टेड. फिर हम आपसे ये भी पूछेंगे कि ये जो नॉमिनेशन पेपर सबमिट हुए थे वो 20 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर तक थे 2023. Yes. क्या इस दौरान ये जो कैंडिडेट थे जो वहां चले गए सुन्नी इत्तेहाद में इनको किसी पार्टी से एफिलिएशन सर्टिफिकेट मिला था?
Sir, I'll come to that question. I will come to कौन that. सा बताएंगे? जी जी नहीं मैं बता सकता हूँ. Sir, हुआ ये था. No. मिले थे सबको. हुआ. आप कैंडिडेट थे ना, सबको मिले थे. हुआ. इन नॉमिनेशन पेपर सबमिट हुआ along with certificate. We had also submitted. इसको माइंड में रखे आगे जी, पढ़ो. we had also submitted. PTI had also submitted their list for reserve seats, but since we were denied. According to section 104, फैसल साहब, दिस इज वेरी 104 में इंपॉर्टेंट. नॉमिनेशन है उसकी. फैसल साहब, जो माय लॉर्ड मंतुखेल साहब ने पूछा है, जी. जब आपने ये 82 लोगों ने जब अपने रिटर्न्स फाइल किए थे, उसके साथ पॉलिटिकल पार्टी की एफिलिएशन शो की थी. जी शो की थी. दैट्स द पर्टिनेंट क्वेश्चन. फिर आप चले अगर आपको इसी से यहीं से ले लें जी. तो फिर हमें आप सिर्फ ये समझा दें कि ये किस तरह से इंडिपेंडेंट कहलाएंगे. जी मैं उस पे भी आता हूँ. ये इंडिपेंडेंट थे या किसी पार्टी के पार्लियामेंट्री पार्टी थी. These were independent. The reason being, To show us from the law Yes. whether they were Yes. independent or they were affiliated with any party. there was litigation on this, and the election commission declared that you cannot stand as a PTI candidate. You are independent. इस पे litigation. Then question arises whether keeping in view section 66 को बाद में पढ़ लेंगे जी. कि क्या इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है कि जी. पार्टी किसी को नॉमिनेट करती है, एफिलिएशन सर्टिफिकेट दे देती है और वो कैंडिडेट की भी ये ख्वाहिश है कि मैं फलां पार्टी से हूँ. जी. क्या ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन को है कि वो उसको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दे? नंबर 1. नंबर 2, क्या ये इख्तियार उस कैंडिडेट को है कि एक दफा वो कागजात जमा कर दे एक पार्टी की तरफ से, वो उस पार्टी से वापस निकल सकता है? नंबर 2. Yes. नंबर 3, क्या उस पार्टी ने जिसने सर्टिफिकेट दिया है वो इसको एक्सपेल कर सकता है जब वो सीट जीत जाता है? This will go. Your lordship has raised very pertinent question, and the issue is. This is I think as far as I'm concerned, this is बहुत important question, and the central question. Please note that. Can you just get the factual aspect out? Now, I just wanted to know all these political parties who are the beneficiaries, any of them supporting you before us? No, I just want to ask them. No, I don't think so, sir. No, let's ask them. The beneficiaries, sir. No, एक सेकेंड. ये देखिए आपने लिस्ट किया है ना. MQM, is it represented? जिन्हें माले गनीमत मिला है, वो तो support नहीं करे. I just want to know who stands where. MQM is represented or not? Is Pakistan People's Party represented? जी, फारूक नाइक साहब है. अजय जरा जी. पहले तो ये बताएं आपका नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस है? Pakistan People's Party parliamentarian. Are you supporting them or opposing them? Opposing them. ठीक है. अच्छा, next comes Pakistan Muslim League N. Is it represented? जी. We're also opposing them, my lord. You're also opposing them. और कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज आ जाती हैं? सर PMLQ जो है, जिसे PML जमात कहते हैं. उलमा इस्लाम पाकिस्तान. जी. Is it represented? जी. नहीं सर, वहीं से बता दें. Supporting or opposing? सर अपोजिंग, मगर इसमें एक और इशू है. आप इशू छोड़ देना, सिर्फ बता दें supporting or opposing. अपोजिंग टू द पोजीशन. मतलब you want to retain the seats. ठीक है. अच्छा, आपका नाम क्या है? JUIF कहीं मैं पढ़ता हूँ. एफ नहीं है, JUI पाकिस्तान है. ओके, थैंक यू. अगर एफ निकल जाए फिर आपकी क्या हैसियत होगी? चलें, ये बेनिफिशियरी एक वैसे तो सेकंड. पार्टी का कोई भी लीडर किसी से भी निकल जाए तो किसी की कोई हैसियत नहीं होती. अच्छा, वो ANP की तरफ से कोई है? नहीं, ANP की तरफ से. अच्छा, ANP is not represented before us. And what about the PTI parliamentarians? उनकी क्या पोजीशन है? Are they supporting you or opposing you? Are you opposing, supporting? Opposing. So you want to retain the benefit. सारे cover हो गए. ANP is not And represented. इस्तेकाम- MQM, हाँ, इस्तेकाम वाले की तरफ से कोई है? इस्तेकाम है पाकिस्तान पार्टी. हाँ, कोई नहीं है. 3 are not represented. MQM. ठीक. ठीक है, got it. Who are the other respondents you were aid? So these are individual candidates who were in the notification. Please expand. सर जो नेशनल असेंबली हुआ ये था कि Are they the those who got elected? yes they were notified, sir. But then they should have been 77 or 22. So this was in relation to KPK, and because they were represented by the People's Party, sorry, they were represented by their but party. are all of them before us? That's No, all not all of them are before you. Why not? They were not parties below, sir. No, but now if this your appeal is allowed, won't they be adversely affected? Sir, I think they should be issued notice. या आपने पहले रिक्वेस्ट क्यों नहीं की थी ना आपने उनको पार्टी बनाया?
सर मैं पार्टी इसलिए नहीं बना सकता था बिकॉज दे वर नॉट पार्टीज बिलो बट दे आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर पॉलिटिकल पार्टीज. They would not be represented below because you are the petitioner. नो बट दे वर रिप्रेजेंटेड बाय देयर पॉलिटिकल पार्टीज. ये जो कैंडिडेट्स हैं इनको तो जो या फिर किसी को भी ना बनाया आप देखिए ना. जब एक जी candidate बिल्कुल को ये भी हो सकता आपका असूली मौक़िफ़ होना चाहिए ना. नहीं सर देखिए as they are not a necessary party because they are represented by their political parties. नहीं, जब वो नोटिफाई हो जाते हैं तो फिर जाहिर है they have sufficient party जरूर है sufficient party. जो कल वो फाइल कर देंगे जिसमें बगैर सुने फैसला कर. ये मैं इससे फिर हम क्या डिसएग्री नहीं करेंगे? AGM साया पे करूंगा. rely मैं इससे करेंगे. डिसएग्री नहीं करूंगा. नहीं वैसे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में तो पार्टी रिप्रेजेंट करती है. जी. कैंडिडेट तो जी. उनको तो लिस्ट देनी जी, होती है. अगर उसको हटाना हो तो वो हटा के. I would agree with the learned. Yeah, I just questioned you. Sir, Because मेरे you've ख्याल arrayed में- some and you've not arrayed others. मेरे ख्याल में एज अ मैटर ऑफ abundant caution उनको नोटिस जरूर जाना चाहिए. But we won't know the names, etc. No, we have the names. You like to provide the particulars and all that. No, it's in the CMA. Everything is provided. They can You'll be have to served. move an application with all the particulars so we can issue. I can do that. जैसे ये सब मौजूद है यहाँ. They can also be served through the election Yes, commission. yes. Because the election commission denotified. Then if पास you go उनके ahead. डिटेल्स हैं. अच्छा एक यहाँ बता दीजिए कि ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने एज ए पार्टी पार्टिसिपेटेड इन द इलेक्शन. नहीं. हो रहे हैं They did not. 55. You are a political party? Yes. Can you show us your registration? सर ये ECP ने रिकॉग्नाइज किया हुआ है. ऑर्डर में भी इस पे कोई डिस्प्यूट नहीं. इसमें एक सवाल मजीद ऐड करते पार्टिसिपेटेड हैं. माय एज ए लॉर्ड पार्टी. नो वी डिड नॉट. माय लॉर्ड खान साहब के सवाल में एक और भी जी ऐड क्या पार्टी कंटेस्ट करती है या पार्टी कैंडिडेट खड़ी करती है? नंबर 1 पार्टी कैंडिडेट खड़ी करती है 66 के तहत. और अगर वो तो कैंडिडेट खड़ी करती है तो इसका मतलब है कि वो पार्टी कंटेस्ट करी. तो क्या पीटीआई ने कंटेस्ट किया था? कैंडिडेट खड़े किए थे? सर दिस इज ए क्वेश्चन. फैसल साहब मैं आपको आपकी मदद करता हूँ. मैं अपने कोलीग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने तरीके से आर्ग्यू करें. फिर हम आपसे बाद में सवाल पूछ लें तो बेहतर होगा. No, these are very pertinent आप questions. नोट I'm कर very लें. grateful, sir. Very grateful. मगर अगर वो आप अपने तरीके से आर्ग्यू करें ना, क्योंकि इतने वकील भी we've been in your position and sometimes becomes very difficult. sir, अब your तो lordship आप अपने ये सिर्फ फैक्ट्स आ गए हैं. जी. कोई और फैक्ट आप बताना चाहते हैं? कुछ तारीखें दे दीजिए 21 दिन को क्या होता है. हाँ ये मैं देना चाहूंगा सर. एंड देन मे बी आई कैन मेक एन एप्लीकेशन. दे कैन बी सर्व्ड थ्रू वो अभी तो फैक्ट्स दे रहे हैं. जी. सर इसके लिए अगर मैं आपसे काइंडली सिर्फ ये जो मैंने एक नोटिफिकेशंस कंपाइल की हैं बिकॉज दिस इज अ क्वेश्चन व्हिच हिज लॉर्डशिप जस्टिस मंसूर हैड आल्सो कि वो डेट्स क्या हैं. तो अगर मैं काइंडली पेज 1 पे आ जाऊं. नंबर कौन सा? ये सीएमए नहीं, ये सर ये मैंने सारे नोटिफिकेशंस जी. आप एक्स्ट्रा कॉपीज दिए इनको?